Good morning, 12th standard, and today we are going to start the chapter number 7 of class 12, that is P block elements. But in this unit, basically, we will be able to appreciate the general trends in the chemistry of elements of group 15, 16, 17, and 18. Okay, as well as we learn the preparation, properties, and uses of dinitrogen, phosphorus, and some of their important compounds. Along with this, dioxygen and ozone chemistry, allotropic forms of sulfur and its chemistry, describe the preparation and properties, uses of chlorine and hydrochloric acids, and so on. ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि हम लर्न करेंगे. एज ऑल ऑफ अस वी नो that in 11th class we have already studied the group number 13 and group number 14 of P block. ठीक है, और P block की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126. सो अगर हम बात करते हैं एक्सेप्ट यस देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज हीलियम which is having a configuration of 1s2. Except that all the elements which lie in the group number 13 to 18, those configurations lie under outermost configuration, the general electronic configuration, lie in between NS2 to NS2 NP1 to 6. ठीक है, we have already studied about ग्रुप नंबर 13 की प्रॉपर्टीज और 14 की प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल के अंदर 11th स्टैंडर्ड में की हुई है. एंड this year we are going to discuss about the group number 15 to group number 18 elements properties. हमें मालूम है that the properties of P block elements जो होती हैं like other that is also influenced by the atomic size, ionization enthalpy, we can say electron gain enthalpy and electronegativity. And one thing more affect their properties like the absence of d and of orbital in the first period and their presence in second third period onward. First और second period में d और f orbitals आपके absent होते हैं और third period onward ये introduce हो जाते हैं. So इनकी influence से जो the properties of the heavier element that also gets varied. And in addition of all these, we also study about the metals, metalloids, and the non-metals properties in these elements, because P block elements are the combination of all these type of elements. ठीक है बेटा, so we will start from the group number 15 in this one chapter. ठीक है, लग गया. Yes. So the group 15 जो होता है that includes nitrogen, phosphorus and nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम, ये न्यू एलिमेंट आपका नीचे डाउन जाने पे क्या हुए हैं, ऐड होते हैं. सो हाउ वी विल गो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, then antimony, then bismuth, and last one is the moscovium. So there, as we moving down in the group, there is a shifting of we can say non-metallic non-metallic character to the metallic properties. Obviously हम जितना नीचे जाते जाएंगे आपकी जो properties होती हैं वो क्या होती चली जाती हैं, that goes becoming a more metallic as there is why they becomes a more metallic in character when we move down in a group, because their atomic size increases. As their atomic size increases, the electrons becomes easily electrons, outermost shell electrons, force of attraction जो होगा उन पर nuclear force of attraction वो कम हो जाएगा and that can easily removed from the shells. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं occurrence की इनके बेटा,
So molecular nitrogen N2 जो होती है, that combines, as all of us we know, 78% by volume of the atmosphere, as well as it is also present in the earth crust in form of a different compound like sodium nitrate, which is also called a Chile saltpeter, and potassium nitrate, which is known as Indian saltpeter, and it is also found in the form of proteins, किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स में. तो नाइट्रोजन यहाँ यहाँ आपकी प्रेजेंट है. वेयर एज अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, सो ये आपकी ये भी आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपकी प्रेजेंट होती है एपेटाइट फैमिली में, लाइक फ्लोरापेटाइट. आप बात करते हैं CA9PO46 और CaF2, जो कि फॉस्फेट रॉक्स जो होते हैं उनका मेन क्या होता है, कंपोनेंट होता है. फॉस्फोरस वैसे भी इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर. ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, ये लिविंग सेल्स की बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, और एक हमारे होते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स जो कि मिल्क और एग्स में भी प्रेजेंट होता है. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट वेयर द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. तो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, कंपाउंड में सॉल्ट पीटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और आपके प्रोटीन्स में प्रेजेंट है. वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस कंपाउंड में एपेटाइट फैमिली का मेन कंपोनेंट होता है, मिनरल फैमिली का, साथ में आपका बोन्स में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ये आपका मिल्क में और एग्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक है बच्चे. सो अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की, सो दीज आर फाउंड एज अ सल्फाइड मिनरल्स. तो ये सारे के सारे किसकी तरह, सल्फाइड मिनरल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं. वेयर एज मॉस्कोवियम जो है आपका, कौन सा, मॉस्कोवियम, इट इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जैसे मैंने कहा था, ये लास्ट में अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर हुआ है, और इसका इंट्रोडक्शन इन बुक्स माने हमारे सिलेबस में भी अभी आया है. सो यू शुड नो दैट मॉस्कोवियम जो होता है, दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड इट्स सिंबल इज Mc. वेयर एज नाइट्रोजन symbol is N, phosphorus is P, arsenic is As, antimony is Sb, and bismuth is Bi. ठीक है, तो ये आपके बाकी एलिमेंट्स के सिंबल हैं. मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर 115 होता है, इट्स एटॉमिक मास इज 289, and its electronic configuration, that is radon 5d 14 60 10 7s2 7p3. तो बेटा हाँ, हमारे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव, ऑब्वियसली इट मस्ट हैव अ वेरी वेरी short half life, and its availability is a very little amount. बहुत कम या बहुत थोड़ा ही पाया जाता है, और इसलिए, और बाकी अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी केमिस्ट्री अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई, बिकॉज ऑफ हाफ लाइफ ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करना. ठीक है, तो एक्सेप्ट अगर मॉस्कोवियम की बात करते हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एलिमेंटल एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितना कितना कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इन एलिमेंट्स की है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस टेबल. हम इसमें से मेनली आपका कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं. सो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक. सभी का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो वही होगा, NS2NP3, है ना, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द 15th ग्रुप. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना NS2NP3. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर नाइट्रोजन, देन इट इज़ हीलियम 2s2 2p3. If we are talking about the phosphorus, then it is neon 3s2 3p3. एक एक शेल बढ़ती जाएगी बेटा. तो for nitrogen it is 2 2s2 2p3. For phosphorus it is 3s2 3p3. For arsenic it is 4s2 4p3. For antimony it is 5s2 5p3. And for bismuth it is जिनन, इसमें 6s2 6p3. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हीलियम नाइट्रोजन के केस में
d orbital is absent. Phosphorus के केस में d orbital is absent but it can be present क्योंकि 3s में है तो 3d is present there. ठीक है, अगर मैं देखती हूँ आर्सेनिक में, so 3d is present, 3d आ चुकी है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और बट यहाँ पर अभी f नहीं आई है ना, लेकिन हम f को अब यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 4s में है ना, तो 4s का कॉन्फ़िगर, 4s में 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल होती है, तो दैट कैन बी प्रेजेंट है, कैन बी अगर कुछ हैवियर एलिमेंट्स की बात की जाती है तो, या प्रॉपर्टीज में होता है। ठीक है, सो ये थर्ड पीरियड हो गया आपका, फोर्थ। नेक्स्ट एंटीमनी में देखो, तो यहाँ पे तो अब आपकी f ऑर्बिटल यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गई और बिस्मथ में तो प्रेजेंट ही हो गई, 4f14 कंप्लीटली फिल्ड भी हो गई। सो बच्चे इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी हेवियर एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द we can say the properties of nitrogen and phosphorus due to the non-availability of d and f orbital. ठीक है, so that we have this the general physical properties जो थी उनकी वो हमने डिस्कस करी, और मॉस्कोवियम को हम याद रखिएगा डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ इट्स हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी अगर हम बात करते हैं। एंड राइट नाउ वी हैव डन अबाउट दी व्हाट वी हैव डन अबाउट दी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपका डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे अगर बात करें तो ऑब्वियसली एटॉमिक आयनिक रेडियाई आपको दिख रहा होगा that it increases in down the group, जैसे जैसे नीचे एटॉमिक आयनिक रेडियाई की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं, it goes on increasing because of the and as well as there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus। जबकि अगर हम बात करते हैं arsenic to bismuth, then it is a very small increase in covalent radius in observed। Why it is very small, ये आपको क्वेश्चन प्लीज यहाँ पे नोट डाउन करिए, एक रीजनिंग क्वेश्चन। why a covalent, why there is a very small increase in covalent radius of arsenic to bismuth। ठीक है, so because मैंने जैसे बोला था कि d और f ऑर्बिटल यहाँ पे ऑब्जर्व हो गई हैं हेवियर मेंबर्स में, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ completely filled d or f orbitals there is very inner screening effect is observed, and due to which a covalent radius is lesser as compared in other elements। ठीक है, next आ जाता है ionization enthalpy। So it goes on decreasing down the group due to gradual increase in atomic size, and we can say that the extra stable as well as extra stable half filled p orbital configuration and smaller size ionization enthalpy जो होती है greater than 14 ग्रुप एलिमेंट्स होती है। ध्यान रखिए बेटा, नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली रेडियाई बढ़ रहा है, इट इज इजियर टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो हो रहा है। बट अगर हम ग्रुप 14 और 15 की कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। होनी क्या चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन होती ज्यादा है। रीजन क्योंकि जो ग्रुप नंबर 14 का कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP2, तो वो हाफ फिल्ड नहीं है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है। ठीक है, बट फॉर 15th ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP3। सो P3, P में 6 होते हैं और 3 हो गए माने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, so it becomes more stable, so more energy is required to remove the electron, and so that is little bit greater than the group number 14 elements। ठीक है, अगर हम बात करते हैं periods में corresponding periods में, if we are talking about the ionization, successive ionization enthalpy, then the order of successive ionization enthalpy as usual, the first ionization enthalpy is lesser than second ionization enthalpy, and second ionization enthalpy is lesser than third ionization enthalpy। ठीक है, and the next one property is the electronegativity value if we are talking, so it goes on decreasing down the group and with increasing atomic size।
जबकि अगर हम बात करते हैं हेवियर एलिमेंट्स की, तो हेवियर एलिमेंट्स में भी इनका डिफरेंस इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। मतलब ओवरऑल ये है कि इट गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसको भी अभी हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। दैट इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर अ polyatomic except nitrogen, which is diatomic and that is having a triple bond in between two atom and triple bond N. So it is a diatomic gas, whereas it is because of this triple bonding, it occurs in the gaseous form, whereas rest of the elements of this group are solid in nature. ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर दैट गोज ऑन इंक्रीजेस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड्स है, और बिस्मथ जो है वो क्या है आपका मेटल है। वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड sorry, decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size। बिल्कुल सही, एटॉमिक साइज नीचे जाने पर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतनी इजीली आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो पाएंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली मेटालिक करेक्टर नीचे जाने पे बढ़ रहा है, सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दैट गोज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट जनरल ट्रेंड ये कहता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इट इंक्रीजेस ओनली अप टू आर्सेनिक एंड देन इट डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल एंटर हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, सो बॉन्डिंग में भी मैटर, बॉन्डिंग भी लूज हो जाएगी और इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, सो ठीक है बेटा, तो दैट इज डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। और नाइट्रोजन के अलावा मींस एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शोज एलोट्रॉपी। ये सारे ही क्या दिखाते हैं? एलोट्रॉपी। chemical properties that we are going to do in our next one video. For today what we have studied, that we have done about the basically that what are the general properties of group number 15, like electronegativity, atomic size, ionization enthalpy, its density, and rest. Group number 15 to group number 18 we have to study in this chapter, and the properties. Okay, so thank you. Go through the topic once again from your book which I already shared with you. Thank you.